Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Dr. Humayun from Edwards College, Peshawar. Today we will be discussing one of the chapter from your first year course, that is chemical equilibrium. Okay, so before starting the chapter, I would like to tell you about two important things. सबसे पहली बात यह है कि आप अगर ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे हो या अगर आप इसको अपने लैपटॉप पे देख रहे हो तो काइंडली आप पिक्सल क्वालिटी को हाई पे रखें, HD पे रखें, ताकि आपको बोर्ड ब्लर नज़र ना आए, ठीक है। एंड सेकेंडली कि आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लिया करें ताकि बाद में आप इसको अपने कॉपी में नीट कर सको। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई होप यू विल एंजॉय। First of all, let me define equilibrium. What is equilibrium? So when two processes, like an opposite processes, that occur simultaneously with equal rates, we call that as equilibrium. ऐसे दो opposite process जो simultaneously हो रहे हो एक साथ, मतलब रिएक्शन अगर वो फॉरवर्ड में जा रहा है तो उसी टाइम वो रिएक्शन बैकवर्ड में भी आ रहा है with equal rates, मतलब rate of forward is equal to the rate of backward, we call that as equilibrium. Equilibrium can be classified into two types. The first type is chemical equilibrium and the second type is physical equilibrium. Chemical equilibrium को हम further two types में divide करते हैं। एक को हम कहते हैं homogeneous equilibrium और दूसरी को हम कहते हैं heterogeneous equilibrium. So what is chemical equilibrium? What is chemical equilibrium? Equilibrium which exists between two different species. The equilibrium which exists between two different species. That will be termed as chemical equilibrium. For example, N2 plus 3H2, it form 2NH3. 2NH3. Remember students कि इस चैप्टर में जब भी आप रिएक्टर लिखोगे या प्रोडक्ट लिख लोगे तो यू हैव टू राइट द स्टेट सिंबल। तो यहाँ पे स्टेट सिंबल लिखना बहुत लाजमी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगे गैस, बिकॉज नाइट्रोजन इज अ गैस, hydrogen is a gas and ammonia is a gas. Let me write another example. Calcium carbonate, it decomposes on heating into carbon dioxide and calcium oxide. So write the state symbols: solid, solid, and this is gas. Now, what is homogeneous and heterogeneous equilibrium? So, equilibrium where there is only one phase, we call that as homogeneous equilibrium. And equilibrium where there are two phases. Over here, one phase. And over here, more than one phase. More than one phase. What is mean by phase? Phase means the state of reactants and product. When the reactants and product, they are in one state, I mean they are either all gases or they are either all liquids, that is called one phase. So अगर आप इस रिएक्शन में देखो तो इस रिएक्शन में सारे reactants और product सारे एक ही state में हैं, तो हम कहेंगे कि it is in the one phase. It is the example of a homogeneous equilibrium. ठीक है। अब आप दूसरे एग्जांपल में देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, ये गैस है। सो इस रिएक्शन में देखिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एक फेज में नहीं है, दो फेज में है। कौन सी फेज में है? सॉलिड में है और गैस में है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। Now, let me write another example. To HgO, it change into Hg
प्लस ऑक्सीजन। और है अगर आप देखें HgO ये हमारे पास सॉलिड है, Hg हमारे पास लिक्विड है और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, गैस है। तो इसमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस 3 फेज हैं। तो हम इसको कहेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इन दोनों को हम किस कैटेगरी में शामिल करेंगे, वी विल काउंट दिस इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ लेट्स come to the physical equilibrium. What is physical equilibrium? The equilibrium which exists in only one species, that is called as a physical equilibrium. The equilibrium which exists in one species. The equilibrium which exists in single species. We call that as physical equilibrium. For example, इसके एग्जाम्पल अगर आप देखिए हमारे पास है वाटर सॉलिड, चेंज टू वाटर लिक्विड at 1 atmosphere pressure and 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे ये क्या है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। क्यों ये फिजिकल है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम एक ही स्पीशीज में है बट उनका सिर्फ स्टेट चेंज है। एक अगर सॉलिड में है तो दूसरा क्या है, लिक्विड में है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, वाटर लिक्विड चेंज टू वाटर वेपर्स, वाटर लिक्विड चेंज टू वाटर वेपर्स। ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है फिजिकल इक्विलिब्रियम की। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं आयोडीन सॉलिड इट चेंज टू आयोडीन वेपर्स, आयोडीन वेपर्स। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, शुगर सॉलिड शुगर अगर हम इसको वाटर में हल करते हैं, वाटर में, तो क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे ये क्या है, ये डिसोल्यूशन है, फॉरवर्ड में क्या है, डिसोल्यूशन है, और बैकवर्ड में क्या है, प्रेसिपिटेशन है। सो द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। थोड़ा सा आगे जाते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं 2-3 बातें यहाँ पे करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस रिएक्शन में देखें, कोई सा रिएक्शन हो, इसमें से उठाएं, एक रिएक्शन उठाएं, फॉर एग्जांपल N2 + 3H2, इट फॉर्म 2NH3। ठीक है, गैस और ये भी गैस। तो यहाँ पे आपको ये एरो नजर आता है, ये एरो, दिस एरो शोज दैट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन 2 डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिएक्टेंस अगर मैं ये एरो लिखूंगा तो इस एरो का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन।
और इस एरो का मतलब है रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी शर्त क्या है कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल हो। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस रिएक्शन मस्ट टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। किस चीज़ में? क्लोज कंटेनर में। ये बातें फिलहाल याद रखिए, लाजमी है। अगर हमारे पास क्लोज कंटेनर नहीं है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन, आगे जाते हैं। मैंने पहले से थोड़ी बहुत यहाँ पे लेकर इसलिए किए ताकि हमारा टाइम जो है वो बच सके, क्योंकि मैंने 20 से 25 मिनट का लेक्चर बनाना है। फॉर दैट रीज़न आई हैव रिटन दिस सम ऑफ द थिंग्स बिफोर सो दैट वी कैन से नाउ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या? सो इट इज अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन in which the active masses of reactants and product become constant and the mixture and do not change with time. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस है जहाँ पे एक्टिव मैसेज का मतलब है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये क्या हो, दे बिकम कांस्टेंट, they become constant and the mixture and do not change with time। मतलब कंसंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो इसके कुछ फीचर है, इस तरह की रिएक्शन के कुछ फीचर है, केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ फीचर्स है। वो फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर होगा हमेशा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। सेकंड ये है कि ये रिएक्शन क्या होने चाहिए? ये हमेशा रिवर्सिबल होने चाहिए, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में और एज वेल एज ये बैकवर्ड में क्या होगा? मूव करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि जिससे केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोज कंटेनर। अगर हमारे पास क्लोज कंटेनर होगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस भी किया, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होगा? अचीव होगा। अदरवाइज ओपन कंटेनर में केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन। नंबर 4, द प्रोसेस इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर का मतलब है कि ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन ये इट विल ऑलवेज बी इन मोशन। ये नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इस तरह लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप है, बट ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड में जाएगा और बैकवर्ड में ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। इसको हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, दिस इज 3 ग्राफ। यहाँ पे मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं। सबसे पहला ग्राफ जो है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? टाइम। दिस इज, ये जो ऊपर वाला आपको ये लकीर नजर आ रहा है, दिस इज फॉर रिएक्टेंट्स। ये किसके लिए है? रिएक्टेंट्स के लिए। दिस लाइन शोज द कंसंट्रेशन ऑफ reactants and you can see it change with time। जितना reaction forward आगे जा रहा है तो ये इसमें देखो change आ रहा है। and this line shows the concentration of product। so initially reactants ज़्यादा होते हैं, but with the passage of time the reactant इसकी concentration में देखो कमी आती है। लेकिन प्रोडक्ट देखो, इनिशियली प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन जितना टाइम जो है गुजरता जाता है तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एक टाइम आता है जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे इसमें ना इंक्रीज आ रही है ना डिक्रीज हो रही है, बल्कि ये एक कांस्टेंट है। तो इसको हम पढ़ सकते हैं कि the rate at which the condition where the rate of forward direction and the rate of backward direction is equal and the concentration of reactant and product become constant, we call that as chemical equilibrium। किस तरह पढ़ेंगे दोबारा? The condition where the rate of forward direction and the rate of is equal to the rate of backward direction and the concentration of reactant and product become constant। मैं लिख रहा हूँ rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, ठीक है।
और मैं नीचे लिख रहा हूँ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। ठीक है, आप इस ग्राफ में एक बात नोट कर ले कि डिक्रीज तो नहीं हो रहा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये बात इस इक्वेशन से आप आसानी से आपको नजर आ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन है तो देखिए जरा किस कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखो कम है। अब अगर आप इस ग्राफ की तरफ आए, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कंसंट्रेशन है और ये क्या है, टाइम है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, ये रिएक्टेंट्स की है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट्स की है, और ये कंसंट्रेशन किसकी है, ये प्रोडक्ट की है। अब देखो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकेम कांस्टेंट। देखो अब इसमें चेंज नहीं हो रहा। इनिशियली देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी। एक पॉइंट इस तरह हुआ जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं थी। ठीक है, यूं ही रिएक्शन आगे जा गया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड become equal and the concentration of reactant became constant। तो वही बात है, rate of forward is equal to rate of backward and concentration of reactants and product became constant। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड ग्राफ। यहां पे देखिए ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप देखें तो हम यहां पे कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड अगेन is equal to rate of backward and concentration of reactants and product became क्या लिखेंगे, equal। क्या equal, the rate of forward is equal to the rate of backward and the concentration of reactant and product became equal। तो इन तीन ग्राफ से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कंडीशन जहाँ पे एक ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आइदर बिकम इक्वल और कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक।